Hello everyone, Namaste. मैं हूं निष्ठा and in today's video I will share with you all about primary schools in UK. When we were moving here to London, finding a primary school that suits us was our main priority. In fact, हमारा house hunting was also around the right kind of school for Isha. Broadly, if we have to categorize, there is private schooling and then there is state funded schooling. I will not recommend anyone to use private schooling, especially for primary years, because it is super expensive. And state funded schools जो होते हैं, those are free and they are very good. Private schools की fees आप मान लीजिए is anywhere from 1,000 to 2,000 pounds for a month. Now that is way too much for primary education, isn't it? Primary schools में you have regular schools and then there is Catholic schools and there are चर्च ऑफ इंग्लैंड स्कूल्स. अब इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? मेनली फंडिंग के डिफरेंसेस हैं. ऑल ऑफ दीज आर वेरी गुड. सारे स्कूल्स में देयर इज रिलीजियस एजुकेशन, RE, ये भी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें दे टीच अबाउट ऑल द रिलीजन्स. आई थिंक आपको जिसमें एडमिशन मिल जाए आर गुड टू गो. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैंने आपको ब्रॉडली स्कूल्स की कैटेगरीज बता दी. नो मैटर विच स्कूल इट इज, प्राइमरी स्कूल्स जो है विल फॉलो द नेशनल करिकुलम ऑफ इंग्लैंड विच इज फॉलोड बाय ऑल द स्कूल्स. भारत में हमारा टर्म टाइम इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, करेक्ट? मार्च अप्रैल यही हमारा चलता है और गर्मी की छुट्टियां होती हैं. आफ्टर दैट यू हैव द ईयर चेंज. यहाँ पर इन यूके पूरा एकेडमिक ईयर जो होता है दैट इज सितंबर टू जुलाई. सितंबर में ईयर शुरू होता है एंड देन different terms come and then next year के जुलाई में the term starts winding up. Almost the entire August is छुट्टी का time, holidays for kids, and then September they come back into another year. Primary school जो होती है that is from reception to year 6, which means reception में बच्चा आता है स्कूल में, then there is year 1, 2, 3, 4, 5 and 6. That is your entire primary school. If the child is 5 years old in the academic year, उस particular साल के September onwards, if the child is 5 years old, he or she is in reception. So बच्चे की एज हमेशा सितंबर के बाद से देखी जाती है उस particular year के. When you have decided कि आपको बच्चे को इस particular year में डालना है admissions के लिए, the previous December is when the application forms are out and you have to fill the application form. Admissions के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले if you have not liked or subscribed, kindly go ahead and do that. To talk about school ratings, how do you find out कि कौन सी स्कूल अच्छी है? Like for me, हम आ रहे थे भारत से सीधा and in India हमारे हाथ में होता है कि हम बच्चे को कौन से स्कूल में डालें. We know कि हमको कोई particular school चाहिए and we want the child to get into that school. यहाँ क्या होता है कि you have to first look for a good school for your child. Accordingly, you have to find a walkable distance, the catchment area as we know it. कैचमेंट एरिया ऑफ एवरी स्कूल इज डिसाइडेड. वो आपका पोस्ट कोड देखेंगे, आपका एड्रेस प्रूफ आपके पास हर एडमिशन के लिए होना बहुत जरूरी है. यहाँ पर इट्स नॉट कम्प्लीटली ऑन अस कि हम मुझे अगर इस पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन चाहिए अपने बच्चे के लिए, I just get it. It's not like that. It does not work like that. There's a council. और इस council में आप application form डालेंगे. You have to fill up this application form saying that we have moved to this in this area and हमारे area में वॉकेबल डिस्टेंसेस पर, और यू कैन से कैचमेंट एरिया हमारा किसका है, हमारे एरिया में ये 3 स्कूल्स हैं एंड इनमें से किसी भी स्कूल में हमें एडमिशन चाहिए अपने बच्चे के लिए. देन द काउंसिल विल कनेक्ट विद द स्कूल एंड सी कि कौन से स्कूल में जगह है बच्चे के लिए. सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू फिल अप द फॉर्म, उसमें बच्चे की आपने एज लिख दी. एज के हिसाब से दे विल नो वेदर योर चाइल्ड विल बी इन year 2, year 3, year 4 and then they will contact the school and find out year 2, 3, 4, 1, whichever year the child is supposed to be, उस year में जगह है. If there is a vacancy, if there is available seat, they come back to you and they say कि हाँ such and such school में जगह है आपके बच्चे के लिए, kindly go ahead. I'm sure when you decide to move to London or you decide to move to UK, उस area में there is not only one place that you look at. You look at 2-3 options of places. Depending upon your distance to work or the child's school, most of us will give priority to the child's school, right? Because catchment area में होना जरूरी है. Firstly, you find out आपको जो area आपने finalize किया है उसमें कौन सी primary schools हैं. Then I would say go and check their ratings online. क्योंकि schools के बारे में feedback, parents का feedback, students का feedback, schools की ratings is all available on the internet. So there's something called as Ofsted.
It's a body that inspects all these schools, and within a gap of a few years, it goes ahead and gives ratings to schools. So there are requires improvement, good and outstanding schools. Frankly, outstanding schools and good schools, ये दोनों अच्छी हैं. ये जो है ऑफस्टेड बॉडी, ये अलग अलग क्राइटेरियाज पे स्कूल को जज करते हैं या इंस्पेक्ट करते हैं. इनफैक्ट आप इनके वेबसाइट पर जाकर यू कैन इवन रीड द एंटायर रिपोर्ट कि हर क्राइटेरिया में उन्होंने क्या रेटिंग्स दी. टीचिंग स्टाफ कैसा, स्टूडेंट्स कैसे थे, बुलिंग पर क्या है, वो सब यू विल फाइंड इन द ऑफस्टेड रिपोर्ट्स. हमने 2-3 जगह चुन ली थी फॉर हाउस हंटिंग. अब उन जगहों के स्कूल्स के बारे में हमने फाइंड आउट किया. एटलीस्ट 2 या 3 आउटस्टैंडिंग स्कूल्स के कैचमेंट एरिया में वो घर हो जहां पर हमें मूव करना था. सो वी न्यू कि हमें काउंसिल को 3 स्कूल्स का ऑप्शन देना है और उन 3 स्कूल्स में से जहां भी जगह होगी हमें काउंसिल वो रेकमेंड कर देगा. कैचमेंट एरिया इज अ बिग डील. आप स्कूल्स की इंडिविजुअल वेबसाइट्स पर जाकर देख सकते हैं कि हर स्कूल के क्या कैचमेंट एरिया. एंड फॉर दैट देयर हैज बीन अ वेबसाइट दैट हैज बीन वेरी हेल्पफुल फॉर मी. सो आई विल show you that website. I'm just sharing my screen with you. यहाँ आपको दिखेगा locating London. मैंने already type किया हुआ है on my Google search. This. Let's see schools in the UK. Let's find schools in England. ये पूरी list है यहाँ पर. So let's put in find schools in Greater London. Find best schools in Ilford. I'm just picking a random area. ये हैं सारी schools. You have outstanding सब के inspection rates भी आपके लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं. These are the school names and their ratings. Primary school है, age group है, सारा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर. Show map of school in Ilford with school catchment areas. यहाँ पर you can see जो green है, those are outstanding schools. I'll just click on one of them. इसका catchment area ये दिखा रहा है. Inspection इसका outstanding है, कितने pupils हैं, catchment area ये सब दिखाएगा. ये फिलहाल locked है because I haven't logged in. You can create an account with them and log in, and then it'll show you all these details also. You can just keep moving in this area. In fact, आप ऐसे move करते जाएंगे. See, this is how. Isn't it interesting? दूसरा तरीका, मैंने अभी home पे click किया, it showed me this. Maybe I want to look at this, or you can even put a postcode. सर्च किया, आपने चाहे postcode डाला या आपने area का नाम डाला. Now मैंने Kingston upon Thames डाला, उसमें it is showing me these. This will be a good school. Yellow is a good rated school. Reds are going to be the requires improvement schools. इसका catchment area ये है, काफी बड़ा है. And then it's a good rated school. Inspection rate इसका good है. इतने pupils हैं. ये primary school है. सब कुछ you can get on this. अलग अलग areas आपको दिख जाएंगे. पटनी इस तरफ है. ये Hounslow में आ गए. You can see Hounslow here. I hope you found this website walkthrough helpful, and I'm sure it'll help you if you're planning to move to London, UK at any point. Let's move ahead. Now, let's talk about admissions. So, आपने school पता कर ली, सारी उसके Ofsted reports पढ़ लिए. You know which schools you want, because as I said, do not look at only one school. Look at least 3 options, क्योंकि आपको काउंसिल का आप जो फॉर्म भरेंगे एडमिशन फॉर्म, उसमें आपको 3 ऑप्शंस देने पड़ेंगे. Now after that comes admissions. So मैंने नॉर्मल एडमिशन प्रोसेस का आपको बता दिया, which is दिसंबर में एप्लीकेशन फॉर्म्स भरने होते हैं, then you get a place in the school. Now what we did is in-year admission form हमें भरना पड़ा था. In-year admissions क्या है? Now in-year admission is typically when एक academic year चल रहा है and the child enters within the year. जुलाई इज द मंथ जब इन लोगों का ईयर वाइंड अप होता रहता है, एंड दे आर ऑल प्रिपेयरिंग टू फिनिश ऑफ दिस ईयर, एंड देन छुट्टियों के बाद सितंबर से स्टार्ट फ्रेश न्यू ईयर फॉर ऑल द किड्स. बट हम तो मई एंड में आए थे, एंड एज आई हैड मेंशन अर्लियर, यहाँ पर एडमिशंस की झंझट पूरी काउंसिल देखती है. वी कॉन्टैक्टेड द काउंसिल, वी सेंट एन ईमेल आउट सेइंग दैट हम यहाँ पे मूव हुए हैं एंड वी हैव अ डॉटर ऑफ प्राइमरी स्कूल गोइंग एज, एंड वी हैड टू फिल अ फॉर्म, इन ईयर एडमिशन फॉर्म. ये सब ईमेल पर ही बात हो रही थी. फॉर्म में एज वी न्यू वी हैड टू राइट एवरीथिंग अबाउट आवरसेल्व्स, व्हेन वी मूव्ड हियर, एंड क्योंकि हम फ्रेश वी हैड मूव टू दिस कंट्री. एड्रेस प्रूफ तो ऑफकोर्स देना ही था, जो हर एक को देना होता है अपॉन स्कूल एडमिशंस, बट अलॉन्ग विद एड्रेस प्रूफ वी ऑल्सो हैड टू गिव देम आवर बोर्डिंग पास. नाउ दैट इज important. So they needed our address proof, passport and BRP. BRP is the residence permit, as you know. The boarding pass was very important. You have to upload it, you have to send it as an attachment and everything, and the form that we had filled along with our 3 options of the schools. In the meanwhile,
ईमेल का रिस्पॉन्स आते आते 1-2 दिन लग गए. इन द मीनवाइल आई टुक ईशा फॉर अ वॉक एंड ये तीनों चारों स्कूल्स वॉकिंग डिस्टेंस पर थी. उनमें से 2 स्कूल्स तो वर क्वाइट हेल्पफुल. रिसेप्शन में बात भी कर ली इफ दे हैड अ प्लेस. फेयरली वी हैड एन आइडिया कि कौन से स्कूल में ईशा को मिल जाएगा एडमिशन. तब काउंसिल से रिप्लाई आया, सो एंड सो स्कूल में अ प्लेस हैज बीन ऑफर्ड टू योर डॉटर. एंड उन्होंने हमें आई थिंक 1 या 2 दिन का टाइम दिया टू एक्सेप्ट द ऑफर and tell them over the email and get in touch with the school to fix a joining date for Isha. If at all you feel कि दूसरी कोई school है जिसमें you're more interested for your child to go, you can always keep your name on waiting list. You can keep your child's name on waiting list for that particular school. और कई बार ये होता है कि academic year खत्म हो जाए, so then they get in touch with you saying कि अब जगह available है if you want to shift your child to that school. So we sent an email to the council saying that we accept this offer and I called up the school saying कि हाँ we would like our child to go to the school. We fixed a date जो forthcoming Monday था वो date हमने fix कर दी. They kept a copy of our passport, BRP, the residence permit, and also they asked if I had Isha का previous report card or performance report or anything. Although Isha के exams नहीं हुआ करते, I had asked her school to give me like a report card sort of a thing जहाँ उसके सारे subjects के reports थे जो हम headmaster, headmistress जो भी बोला करते थे, principal. यहाँ पर head teacher was so pleasant. आई मिलने ईशा को. Then ईशा का जो class teacher था he came to meet us at the gate. Isha was quite comfortable. उसको बहुत अच्छा लगा वहाँ पर. So that is half the battle won, isn't it? About uniforms, यहाँ पर समर की अलग यूनिफॉर्म होती है एंड विंटर टाइम, ऑटम एंड विंटर टाइम की थोड़ी अलग यूनिफॉर्म होती है क्योंकि समर में यहाँ पर कभी बहुत गर्म भी हो जाता है, धूप रहती है बहुत, तो यूजली लड़कियों के लिए इट्स लाइक अ ड्रेस एंड लड़कों के लिए इट कुड बी शॉर्ट्स. एंड जैसे जैसे ऑटम और विंटर आता है तो यूनिफॉर्म में लेगिंग्स एंड ट्रैक पैंट्स एंड ट्राउजर्स ये अवेलेबल होते हैं. सो यूनिफॉर्म्स कहाँ से हम ले सकते हैं? द थिंग इज भारत में तो हमें सब स्कूल से लेना पड़ता था या स्पेसिफिक वेंडर से लेना पड़ता था. यहाँ पर आपको ये सारी यूनिफॉर्म सुपरमार्केट्स में मिल जाती हैं. सो देयर इज मार्क्स एंड स्पेंसर्स, सेन्सबरीज, टेस्को, यहाँ पर जो ये बड़े बड़े नाम हैं सुपरमार्केट जैसे भारत में बिग बाजार और सब होता है, यहाँ से आपको स्कूल यूनिफॉर्म मिल जाएंगे. हाँ, लेकिन जैसे टी शर्ट्स हैं जिन पे स्कूल का लोगो है या जंपर्स हैं जिस पे स्कूल का लोगो है, स्कूल स्पेसिफिक लोगो वाली जो चीजें होती हैं वो स्कूल से ऑफ कोर्स यू हैव टू परचेज. यहाँ पर आपको स्कूल बुक्स लेने की कोई झंझट है नहीं बिकॉज एटलीस्ट दैट्स व्हाट वी सॉ. वी डिड नॉट हैव टू परचेज स्कूल बुक्स. इन लोगों को स्कूल में ही सब करवाया जाता है. इनफैक्ट भारत में काफी होमवर्क और सब भी आता था ईशा का. यहाँ पर कोई एज सच होमवर्क नहीं होता. हफ्ते में 2 दिन, एक दिन इनको मैथ की वर्कशीट्स करनी होती है, लाइक अ स्मॉल टेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर किड्स जस्ट फॉर द पेरेंट्स एंड टीचर्स टू नो हाउ मच द किड नीड्स इम्प्रूवमेंट और वेयर द किड स्टैंड्स. और हफ्ते में 1 दिन कोई स्पेलिंग चेक होता है. बाकी आई थिंक ऑल इन ऑल बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं किया जाता बच्चों को. इन प्राइमरी रिसेप्शन में बच्चा एंटर होता है एंड गोज थ्रू टिल ईयर 6. उसमें कोई एग्जाम ऐसा सच होती नहीं है. एटलीस्ट ईशा के स्कूल में दिस इज व्हाट वी सॉ. विद इन द सेम क्लास ऑल्सो बच्चों को उनके एबिलिटीज के हिसाब से काम दिया जाता है, विच मीन्स कुछ बच्चे होते हैं हु आर अ लिटिल मोर एडवांस्ड. उनको फॉर एग्जाम्पल उनको अपने सारे टेबल्स आते हैं. कुछ बच्चे होते हैं स्टिल स्ट्रगलिंग प्रॉब्ली विद द टेबल ऑफ 5 और 6. कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने टेबल्स मास्टर कर लिए हैं, नाउ दे हैव मूव्ड ऑन टू फ्रैक्शंस और व्हाटएवर. सो उनको उस हिसाब से बच्चों को वर्कशीट्स पकड़ाई जाती हैं. सो द किड्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज आल्सो आर गिवन डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क विद इन द क्लास. एंड वंस द टीचर इज कन्विंस्ड कि अच्छा बच्चे ने ये वाला टॉपिक पूरा कर लिया है, तब द टीचर विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. वो उस टॉपिक की वर्कशीट उस बच्चे को देंगे. सो आई थिंक दैट इज क्वाइट चाइल्ड सेंट्रिक विच आई अप्रिशिएट. स्कूल्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं. ऑफ कोर्स देयर इज इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री में यहाँ पे यूजुअली इस जगह की हिस्ट्री यूरोपियन हिस्ट्री की जाती है. सो यू हैव मोर ऑफ रोमन्स एंड वाइकिंग्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ हिस्ट्री. फिजिकल एंड सोशल हेल्थ पर भी एक इन लोगों का सब्जेक्ट होता है जिसमें बच्चों को इट्स ऑल अबाउट ग्रोइंग अप. इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चों के साथ टीचर्स जस्ट डिस्कस अबाउट emotional, mental, physical well-being. So they talk about hygiene, they talk about anxiety, they talk about separation, कई बार losing a loved one, divorcing of parents.
siblings के साथ के relations. I mean, a lot of topics are dealt with, even physical changes that a child goes through. धीरे धीरे करके टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, बहुत कंफर्टेबली बच्चों को ये सब सिखाया जाता है. स्पोर्ट्स भी काफ़ी होता है एंड देयर आर कल्चर डेज सेलिब्रेटेड इन स्कूल्स एंड दिस इज इरिस्पेक्टिव ऑफ इट बीइंग कैथलिक स्कूल, चर्च ऑफ इंग्लैंड स्कूल या नॉर्मल स्कूल. हर स्कूल में कल्चर को सेलिब्रेट किया जाता है. सो दे एनकरेज मल्टी कल्चरल सोसाइटी. इसके अलावा देर आर स्कूल क्लब्स. स्कूल क्लब्स होते हैं, सम आर फ्री एंड सम आर चार्ज्ड. So there is a drama club, there are music clubs, there are sports clubs, dance clubs, अलग अलग क्लब्स हैं. ये जो क्लब्स होते हैं ये कभी कभी स्कूल से पहले होते हैं. अगर स्कूल 9 बजे शुरू होने वाली है, so the choir club will start at 8:30. So बच्चा आधे घंटे पहले जाकर the child can participate in choir. कुछ क्लब्स होते हैं, for example अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सपोजर दिया जाता है बच्चे को. It could be during lunch time. Lunch time 1 घंटे का है, so उसमें से आधा घंटा the child will dedicate to music club. या कुछ क्लब्स हैं जैसे ईशा हैड जॉइन गर्ल्स फुटबॉल. ये स्कूल के बाद के आधा घंटा या 1 घंटा डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन दे टेक. एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी गुड वे ऑफ जस्ट एक्सपोजर फॉर चाइल्ड टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स. मोस्ट ऑफ द स्कूल्स प्रोवाइड स्कूल मील्स, लंचेस होते हैं स्कूल्स में. इनफैक्ट दे सेंड एन एंटायर मेन्यू बिफोर हैंड. वो महीने की शुरुआत में मेन्यू भेज देते हैं कि every month ka, and there are non-veg options, vegetarian options and vegan options also, and accordingly you choose, and it is all subsidized rate. Now school lunches के अलावा if you choose to send packed lunch, most of the schools here, in fact I think all schools जितनी मेरी knowledge है are nut free. So allergies बहुत होती हैं यहाँ पर nut से. So to avoid all that, you are asked to send nut-free packed lunches and a fruit for short break. And I believe I have covered all the topics here as far as my research went. मैंने जितना फाइंड आउट किया था मैंने यहाँ पर शेयर किया आपके साथ. अगर कुछ मिस हो गया हो मुझसे, so kindly let me know. You can put it in the comment box or you can send me an email. And if there are any suggestions that you have, any questions that you have, you can put it in the comment box or you can send me an email. And I will see you soon with another experience or a new place. Do like and subscribe. Bye bye.